Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is fourth chapter, magnetic effect of electric current. In this chapter, we will study about the magnetic field produced by the electric current in various type of conditions like straight current carrying conductor, some solenoids, some toroids, and so on. So firstly, we will start with the concept of magnetic field. See, the space around a magnet within which its influence can be experienced is called its magnetic field. Alright, so we have studied this thing in our junior classes like 8th or class 10th. Alright, whenever we talk about magnetic field, we usually think of a magnet. हम हमेशा मैग्नेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हमेशा तभी दिखे जब मैग्नेट वहाँ पे कोई हो. ठीक है, क्योंकि हमारे मन में जो मैग्नेट की इमेज होती है दैट इज़ एन आइसोलेटेड स्टोन टाइप मटेरियल, बट सम काइंड ऑफ flow of charges means flow of electrons also produces magnetic field or magnetic effect. Obviously, we have studied this thing in our class 10th experiment, that is Oersted experiment. So there we have studied two statements, very important. First one, a moving charge or a current sets up a magnetic field in the space surrounding it. Alright. Second is the magnetic field exerts a force on a moving charge or a current in the field. So these two are very important expressions, just because these are the basic of our this chapter. Alright. So like electric field, magnetic field is a vector field. Also a vector field, yes. A vector associated with each point in space means this electric field and magnetic field produces vector field. Alright, we usually use symbol capital B to represent magnetic field. So in this chapter we will use capital B as the symbol for magnetic field, like we have used electric field capital E. So first thing we are going to start, that is Oersted experiment. For Oersted experiment, we first come to a very interesting story that one Gian Domenico Romagnosi was an Italian jurist, person, a jurist, once found that an electric current flowing in a wire affects a magnetic needle. Means the thing that Oersted discovered is earlier already observed. By whom? Gian Domenico Romagnosi. Alright, लेकिन उन्होंने एक पेपर में पब्लिश किया, लेकिन वो लोकल न्यूज़पेपर्स था, so it doesn't come to limelight. So again in 1820, a Danish physicist, means you have heard about him, Hans Christian Ørsted. Ørsted again rediscovered that the property a current carrying conductor produces a magnetic field around it. Alright, so Ørsted experiment, what was that? Let's see with this video. So let's see what is a Ørsted experiment. Here वन अरेंजमेंट इज गिवन. एक नीडल है, तार है और तार बैटरी से जुड़ा हुआ है, तार में करंट बह रही है. ठीक है, तो अब देखिए नीडल ऐसे प्लेस्ड है कि उसका नॉर्थ अभी के केस में वो रैंडमली ओरिएंटेड है. ऑब्वियसली नॉर्थ में ही जाके नॉर्थ और साउथ में ओरिएंटेड होगी. जब ए और बी के बीच में हमने नीडल नीचे की ओर प्लेस कर रखा है वायर के. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बैटरी की से कनेक्टेड है और ये एक रियोस्टेट है जो करंट को कंट्रोल करेगा. मींस अब देखिए यहाँ पे जब हम वायर में करंट फ्लो कराना शुरू करते हैं अपना की ऑन करके, ठीक है, तो अब देखिए जब
ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब इसमें करंट फ्लो होती है साउथ टू नॉर्थ, ऑलराइट, साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर, तब ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जब नॉर्थ से साउथ, अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि ये मैग्नेटिक नीडल की ही पोजीशन हमने चेंज कर लिया, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन को सेम रखते हुए हमने मैग्नेटिक पोजीशन को एकदम अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड हो गया, यानी ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। अगर मैंने बी को साउथ माना है, ए को मैंने नॉर्थ माना है, तो डिफ्लेक्ट ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग जब हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ करंट में, अगर साउथ से नॉर्थ करंट बह रही हो तो मैग्नेटिक नीडल, अगर हमारी मैग्नेटिक नीडल नीचे की ओर रखी हुई है, करंट साउथ से नॉर्थ बह रही है, तो डिफ्लेक्शन नीडल में वेस्ट की ओर होगा। अगर हमने नीडल की पोजीशन चेंज करी और करंट की पोजीशन चेंज नहीं करी, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन नीडल में अपोजिट साइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने नीडल को प्रीवियस पोजीशन में यानी फर्स्ट पोजीशन पे यानी नीचे की ओर ही रखा और हमने क्या किया, जो अपना करंट की डायरेक्शन थी हमने मूव कर ली नॉर्थ से साउथ यानी नीचे की ओर, ठीक है, तो हमारा डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, ईस्ट की ओर हो गया। और ये गवर्न कैसे करता है आपको पता ही है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, जो हमने 10th में पढ़ा था। अभी हम आगे अब हम देखेंगे कि कैसे ये वेरिएशन होता है सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज Ørsted experiment. Now come to the proper applications of this Ørsted experiment, or how we see or calculate our physical properties through this Ørsted experiment observations. So for this, firstly we will start with Biot-Savart law. Biot and Savart, these were two physicists, they have given this law. What was that? We will see. See, Ørsted experiment showed that a current carrying conductor produces a magnetic field around it. It is convenient to assume that this field is made of contribution from different segments of the conductor or the wire called current elements. मतलब हम जो लंबे तार लेते हैं उसके छोटे छोटे तार के टुकड़े भी वही बिहेवियर शो करते हैं जो एक बड़ा तार शो करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। So here we will start with our observation of Biot-Savart law. Now consider, as we are starting Biot-Savart law, we will start with a current carrying conductor, this much y x। आप फिगर बनते देखिए क्योंकि सभी कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर के बनने में है। ये एक वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा हमने करंट एलिमेंट लिया, बहुत छोटा सा इसी तार का टुकड़ा लिया, दैट इज डी, इसकी लेंथ क्या है डी एल, ठीक है। इस करंट एलिमेंट में भी करंट उसी दिशा में बहेगी। नाउ this is axis of this wire, straight line. Consider this point P where we have to calculate the magnetic field. कितना मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे इस करंट के बहने के कारण, वो हमने निकाला। तो इसके निकालने के लिए हमने एक छोटे करंट कैरिंग कंडक्टर से, चूँकि ये देखिए बहुत छोटा है तो इसके हम किसी भी पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द P related to the current element. All right. If this distance is r vector, all right, and this direction is making angle theta with the axis of this wire at this particular point, all right. So these are our quantities. Now according to just because Biot-Savart law is a law, so it is simply an statement, all right. So we will write some quantities which is very important, that is consider a current element, dl, all right. It is a vector quantity just because it is again a direction, a distance,
So of a conductor XY carrying current, how much? I. Let P be our point, P be the point where the magnetic field dB due to the current element dl is to be calculated. Vector signs are very important. Calculated, sorry. Now see, let theta be the angle, let r be the relative distance from, or the relative position, just because distance is a scalar quantity, just because it is a displacement, position you can write it like this, position from dl and theta be the angle between dl and r. Alright, so this is our observation. Now we will start what is Biot-Savart law. So according to Biot-Savart law, a law doesn't require a proof, it requires a confirmation. That is why it is simply the magnitude of the field dB vector. फर्स्टली किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? फर्स्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current I through the conductor, that is dB is proportional to I. First thing. Now second is directly proportional to what? dB. Directly proportional to the length dl of the current element. So dB is proportional to dl also. Now third one is directly proportional to sin theta, that is dB is proportional to sin theta. Now last one, it is inversely proportional to square of the distance of P from conductor. Alright, so it is dB vector is proportional to 1 by r square. So combining all these
we will get an expression that is dB combining dB is proportional to I dl sin theta. These are directly proportional and r square is inversely proportional. All right, now as it is a proportionality, we can remove proportionality using a proportionality constant, that is k I dl sin theta by r square. All right, this proportionality constant capital K depends upon the medium in which these things are placed, the point and the wire. And second, the observation point or the SI unit or the units which we will going to choose, मतलब SI यूनिट ही नहीं, जो भी यूनिट हम चूज़ करने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे आपका कूलम्स लॉ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, वैसे ही यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज़ के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेयर टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो इसको टेस्ला भी यूनिट यूज़ करते हैं, वेबर भी यूज़ करते हैं। अगर वेबर में होगी तो क्या लिखा जाएगा, वेबर पर मीटर पर एम्पियर, या तो वेबर पर एम्पियर मीटर इसको जनरली हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट के फॉर्म में है ना, तो म्यू नॉट एक्चुअल में हमारी यहाँ पे एक और प्रोपोर्शनलिटी है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड को पास ऑन या मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करने की कैपेसिटी होती है किसी प्लेस की या किसी मीडियम की। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और भी। सो आवर एक्सप्रेशन बिकम्स dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta by r square. So first one is this thing. Now if I want to write this thing in vector form, so as we can see in our figure that this is our figure, यहाँ हम इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, r एक वेक्टर क्वांटिटी, dl है इधर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अगर हम सबसे पहले क्या करें, r और dl एक ही प्लेन में है, dl और r एक प्लेन में है, r की तरफ हम अपना हथेली ऐसे लेके जाएं, चूँकि हमने 10th में पहले ही पढ़ रखा है तो इसको बहुत एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ की हथेली ऐसे लेके जाएं कि ये जो हमारी उंगलियां हैं आगे, इसको हम इधर घुमा सकते हैं, पीछे नहीं घुमा सकते। पीछे घुमाने के लिए हमें हाथ ऐसे उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे रखते हैं, r की तरफ पहले अपनी उंगलियों को प्लेस करिए, फिर dl की तरफ, dl किधर है, राइट साइड से जल्दी पड़ जाएगा और लेफ्ट साइड से ऐसे पूरा घूमना पड़ेगा। तो r की तरफ ऐसे, तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं r से dl की तरफ, तो हमारा अंगूठा ऊपर की ओर प्लेस है ना। अगर हम ऐसे dl होता तो हम ऐसे घुमाते तो अंगूठा नीचे जाता। तो ये जो अंगूठा है ऊपर, ये जो हम r से dl की तरफ घुमा रहे हैं तो अंगूठा हमारा ऊपर रखना पड़ रहा है। तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। ठीक है, इसी तरह अब देखिए यहाँ पे, लेकिन चूंकि देखिए हमारी करंट की दिशा नीचे से ऊपर की ओर है, इस वाले में इधर से इधर है, तो हमें ये तब का केस है जब हमारे करंट की दिशा आर की तरफ होती। तो अब चूंकि ये देखिए करंट इधर है, तो पहले करंट की दिशा में प्लेस करिए। ठीक है, अब चूंकि ये करंट की दिशा में है तो करंट की दिशा में प्लेस करिए अपनी उंगलियों को, और आर की तरफ, जिधर पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उधर की तरफ हम उंगलियां घुमाएंगे। ठीक है, तो यानी इसका रूल एग्जैक्टली क्या है, पहला फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इस साइड में अगर हमारा ये एक्सप्रेशन है कि तार, हमारे करंट ये बह रहा है, हमें पी पॉइंट पे निकालना है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये पी पॉइंट है। तो इस केस में ऐसे, क्योंकि करंट की दिशा में हमें पहले उंगलियां रखनी होती हैं, फिर जिस पॉइंट पे निकालते हैं उधर की तरफ बढ़ते हैं, तो इधर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो
हमारा ये जो उंगलियों का रोटेशन है ये इधर की ओर होगा, और उंगलियों का रोटेशन इधर होगा तो अंगूठा हमारा कैसा आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इसको शो करते हैं ऐसे, डॉट बना देते हैं केवल एक गोले में। इसका मतलब जैसे देखिए तीर होता है, तो तीर को जब आप आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको एक पॉइंट दिखेगा, क्योंकि तीर ऐसा होता है, ठीक है, कि ऐसा ये इस तरह का पीछे उसका रहता है और आगे ऐसे नुकीला रहेगा, ठीक है। तो जब सामने देखेंगे तो पॉइंट आएगा और पीछे देखेंगे तो ऐसे 3-4 लाइन नज़र आएगी। तो इसी वजह से ये डॉट वाला ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ है। अब अगर मान लीजिए पी पॉइंट हमारा इधर रहता है, जैसे हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो हमने शुरुआत में केस बनाया था, पी इधर, तो करंट की दिशा में आपको उंगलियां रखनी है ऐसे, और जिधर पोजीशन निकाल रहे हैं फील्ड उधर की तरफ घुमाना है। तो इस बार आपको उंगलियां इधर घुमाना है, तो आपको हाथ कैसा करना पड़ेगा, हाथ नीचे की ओर ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, यानी अंगूठा नीचे चला जाएगा। यानी इस बार फील्ड कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, प्लेन में ही रहेगा पेपर के, इन दोनों इस पूरे प्लेन के पेपर के परपेंडिकुलर, लेकिन कैसे, नीचे की ओर, यानी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यानी अपने इस वाले फील्ड में, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर रहेगा, और dB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन बायोट-सेवर्ट लॉ का। तो अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखिए dl साइन थीटा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है आइडियल साइन थीटा, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि I को हम एक स्केलर फॉर्म में बाहर ले लें, dl साइन थीटा, dl ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये जो छोटी सी dl हो गई, ठीक है ना, और ये हो गया r वेक्टर। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे अगर हमारा कोई यूनिट वेक्टर रहता था, मान लीजिए मैंने कहा dl साइन थीटा लिखा हुआ, तो असल में इसको लिख सकते हैं dl इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ हमने यूनिट वेक्टर माना कि r वेक्टर का यूनिट वेक्टर r कैप है, r एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर स्मॉल r कैप है, तो हम इसको ऐसे लिख दिया। और dl खुद में एक मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा हो गया। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दो वेक्टर्स हैं, एक यूनिट वेक्टर r हो गया, एक dl हो गया, और ये एक साइन थीटा, इनके बीच के एंगल का साइन है। तो ये ए बी साइन थीटा किसका होता है, a क्रॉस b का, यानी dl वेक्टर का क्रॉस r वेक्टर का, ये। और r चूँकि r वेक्टर यहाँ पे, अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर r को वेक्टर r अपॉन r करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं, जिसको थोड़ा भी वेक्टर आता है वो इसको अप्लाई कर सकता है। dl वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, r हमने यूनिट वेक्टर को वेक्टर बनाया वेक्टर r अपॉन r से, ये पूरा वही लिखा है जो ऊपर यहाँ लिखा था, और साइन थीटा इनके बीच के क्रॉस प्रोडक्ट के कारण, यानी इस क्वांटिटी को हम dl साइन थीटा की जगह अपने इस फॉर्मूले में प्रूफ रख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए dB वेक्टर फॉर्म में अब हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट, करंट आई तो स्केलर रहेगी, 4 पाई रहेगा, dl वेक्टर फॉर्म में क्रॉस r वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाई जो r स्क्वायर था, अब नीचे एक और r आ गया तो r क्यूब हो गया। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ होता है। डायरेक्शन हमने समझ लिया, इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में और थोड़ा पढ़िएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हम बायोट-सेवर्ट लॉ से देख सकते हैं। देखिए हमको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो dB की यूनिट जो होगी वो देखिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ स्क्वायर है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसा रखा कि, पहले इसको रख लेते हैं, करंट हमने ले ली 1 एम्पियर की, r दूरी ले ली 1 मीटर की, और dl ले लिया यानी एलिमेंट ले लिया 1 मीटर का, और थीटा ले लिया 90 डिग्री में, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 91। तो dB किसके बराबर हो जाएगा, सारी चीज़ें 1, तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई केवल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी मैंने बताया था, 10⁻⁷, और ये यूनिट हो जाएगी टेस्ला, ठीक है। तो dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेस्ला। तो यहाँ से 1 टेस्ला कितना होगा, अब अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कितना होगा, 10⁻⁷ टाइम्स दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सच अरेंजमेंट, जिसमें R1 हो, dl 1 हो,
ऐसे अरेंजमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का 10⁻⁷ टाइम्स अगर हम 10⁻⁷ टाइम्स अगर हम कर दें तो क्या बन जाता है 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला is 10⁷ times the magnetic field produced by a conducting wire of length 1 meter and carrying current 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it. So it is 1 Tesla is 10⁷ times। देखिए हमने क्या किया, 10⁻⁷ था, इसको इधर 10⁷ कर लिया। ये डीबी कौन सा है, जब ये सारी अरेंजमेंट हो, 1 मीटर वाला, 1 मीटर दूरी पे रखा हो, 1 एम्पियर करंट हो, तब इतना फील्ड, और 10⁷ टाइम्स डीबी इक्वल्स टू 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला is 10⁷ times in the magnetic field produced by a conducting wire of length 1 meter and carrying current 1 ampere at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it। तो 1 टेस्ला भी कभी कभी पूछी जाती है। नेक्स्ट कंटेंट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।